Hello bachcho. So now we have reached to the second video, and we have already discussed the story, what is about, and the story is about the wise parrot, right? And the really parrot was very, wise. So what was the story? The story was the parrot was in the golden case in the house of a merchant, a rich merchant, and then one day merchant was going outside for the work for several days, and then he went to the parrot and he asked the parrot that, oh, I want to bring something for you from the other place, what do you want? And then parrot told that, okay, you care me a lot, but I want to go outside, I want to fly in the sky. But merchant told that, okay, I love you a lot, right? So I can't flew off you, I can't take you out, because it is not good, you can ask me anything else. And then he told that, okay, if my friends will meet you in the forest, then you will tell them that I greet, okay, I greet for them. And then merchant went from there, and then he met the parrots. And then merchant told to the other parrots that your friend sent greetings for you all. And then by saying that, one parrot fell down from the branch of the forest. And then by seeing this, merchant shock and distress and unpleasant moment it was. And then he ran away from there, and then he returned to home. And then he went to the parrot, and he narrated whole the story, what he uh, he 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 saw, he conveyed all the things. And then when he started saying that, I made to your relatives, and then when I was telling this about you, your greetings, that time one parrot fell down and he died. And when merchant was saying this, that time parrot parrot just changed his body in such a way that he died. And merchant realized that, okay, my loved pet is no more. And then parents take out the parrot from the case and put near to the window sill. And when merchant took one step back, okay, and then parrot just wake up, and then it flew off. Then parrot flew off. And then parrot told that, okay, my friend showed me that how to flew, or how to take took out from the case. And now I am outside, I'm in the sky, I'm flying in the sky, goodbye, right? So this was the whole story. I narrated these things, okay, this story in English, so that you will also try to understand the things. So let us think, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वाई डिड अब यहाँ पे देखिए डिड आया है, राइट? तो जब कोई बात अगर पास्ट में हो रही हो, राइट, और उसमें अगर क्वेश्चन आ जाए, राइट, तो वहाँ पे हम लोग डिड यूज करते हैं, ठीक? तो वाई डिड द मर्चेंट, व्यापारी ने कीप रखा द पैरोट इन ए केस ऑफ गोल्ड, वो सोने के पिंजड़े में क्यों रखा उसको? नॉर्मल पिंजड़े में ही रख सकता था. तो इसका आंसर क्या होगा कि सिंस द मर्चेंट वाज रिच, since the merchant was rich, that is why merchant kept into the case of gold. तो आप लिख लेंगे, मैं जो बोला हूँ उसको आप लिख लेना, ठीक? वो क्यों रखा उसको सोने में? क्योंकि व्यापारी क्या था, वो अमीर था. तो इसका आंसर क्या होगा? since SINC, since the merchant was rich, that is why, therefore, ऐसे भी लिख सकते हो, डेट इज वाई नन लिख करके आप देयरफॉर लिख सकते हो,
T-H-E-R-E, there, F-O-R-E, therefore the parrot was kept into the cage of gold. दूसरा क्वेश्चन, व्हाट मेड द पैरोट अ फेवरेट पेट टू द मर्चेंट, कौन सा ऐसा चीज था जिसके चलते जो मर्चेंट है उसको उसका वो फेवरेट था. जैसे होता है ना हम लोग का फेवरेट फ्रूट, फेवरेट प्लेस, फेवरेट होता है ना, उसी तरह से पसंदीदा उसको क्यों बनाया, क्यों, चूंकि पैरोट क्या था, वो काफ़ी बोलता था, राइट, और वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, वाइज था. तो यहाँ से आंसर आप लिख सकते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज पैरोट वॉज अ ब्राइट एंड टॉकेटिव. ठीक है, एंड ऑल्सो उसको इंटरटेन करवाता था. क्या कराता था, इंटरटेन कराता था, और स्टोरी बोलता था और गाना सुनाता था. ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर ये होगा, कहाँ चला गया, इसका आंसर होगा, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज पैरोट वाज टॉकेटिव वहाँ पे था ना, पैरोट वाज टॉकेटिव एंड ब्राइट, ये हो गया. आल्सो इट इंटरटेन्ड, पैरोट के लिए क्या यहाँ पे आ गया, इट इंटरटेन टू मर्चेंट बाय सेइंग स्टोरीज, है ना, स्टोरीज एंड सॉन्ग्स. किताब में जो वहाँ पे लिखा हुआ स्टोरी में वही बात मैं बोल रहा हूँ, उसको वो कहानी सुनाता था, गाना सुनाता था. हो गया आंसर. तीसरा, व्हाट मैसेज डिड द पैरोट आस्क द मर्चेंट टू कन्वे टू इट्स फ्रेंड्स, कौन सा संदेश देने के लिए बोला था पैरोट ने अपने दोस्तों के लिए, राइट. तो यहाँ पे देखिए ग्रीटिंग देने के लिए बोला था, ग्रीटिंग्स, है ना. तो यहाँ पे, ओ ब्यूटिफुल पैरोट्स, आई हैव वन ऑफ योर रिलेटिव्स एज अ पेट एंड कीप, नो सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यस, यहाँ से, the parrot but I want to touch the this and then no, yes, since you cannot let me fly when you see my friends, क्या मैसेज किया, तो यहाँ से ये, when you see my friends in the jungle tell them that I send them greetings from my cage, मैं अपने पिंजरे से उसको greetings भेजता हूँ. तो क्या भेजने के लिए बोला था, greetings, क्या था, greetings था, राइट. तो इसका ये आंसर हो गया. What message did the parrot ask the merchant to convey to its friends, अपने दोस्तों के लिए क्या मैसेज, तो इसका आंसर क्या होगा, the parrot message, ऐसे लिख सकेंगे, the message of parrot was to greet their friends who were living or who are living in the jungle. ठीक है, the message, फिर से मैं बोल रहा हूँ, the message of the parrot was to greet, G-R-E-E-T, to greet their friends who are living in the forest और जंगल. हो गया आंसर. पांचवा, हाउ डिड द पैरोट escape फ्रॉम द केज, पिंजरा से जो है पैरोट कैसे भागा, तो इसका आंसर क्या होगा, when the merchant was telling, है ना, टेलिंग और नरेटिंग करना, नो, टेलिंग द स्टोरी ऑफ जर्नी, द स्टोरी ऑफ हिज जर्नी, एंड merchant told or said that one of your friend felt down from the forest, from the branch of tree. That time parrot also changed itself that the parrot died. By seeing this, the merchant thought that the parrot
is or the parrot has died. The merchant took out the parrot outside of the cage and put near to the window's sill. And after some time, the parrot flew off. The parrot flew off. In this way, parrot flew off from the cage or escape from the cage. escape मतलब भाग जाना. तो वो जो मैंने आपको आंसर बोला, ठीक, उसको आप लिख लीजिए. ठीक है, आप मोबाइल में देख रहे हैं तो जो मैं बोलूँगा सी से आप करेंगे तो वहाँ पे नीचे में लिखा आ जाएगा, उसको आप लिख लीजिए. मैं इस पे लिख इसलिए नहीं रहा हूँ कि जो मैं बोलूँगा वही चीज़ आप लिखेंगे, ठीक. तो थोड़ा आपको आप सुनेंगे, राइट, सुनकर लिखने की एक आदत आप डालेंगे तो उससे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा. ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, थिंक एंड डिस्कस. इस पे जो है हमको विचार करना है. ठीक है, क्या करना है, हमें विचार करना है. इफ यू वर द मर्चेंट, इफ यू वर द मर्चेंट, अगर आप व्यापारी होते, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द पैरोट्स रिक्वेस्ट फॉर फ्रीडम. आप तोते के लिए, अब तोता ने जो रिक्वेस्ट किया कि हमको आज़ाद कर दो, आप उसको कैसे आंसर करते. ठीक है, अगर मैं व्यापारी होता तो मैं तो उस तोता को बोलता है मैं तुमको आज़ाद कर दे रहा हूँ, आ जाओ दोस्त यार से घूम फिर कर, फिर तुमको मन होगा तो आ जाना. कैन यू थिंक ऑफ ए रियल लाइफ सिचुएशन वेयर इंटेलिजेंस इज मोर यूजफुल देन स्ट्रेंथ. आप ऐसा कोई रियल लाइफ में कोई ऐसा स्थिति बता सकते हैं जब इंटेलिजेंस इज मोर यूजफुल देन स्ट्रेंथ. आपको बुद्धि ज़्यादा काम करता है मजबूती से. मतलब आप बहुत मजबूत है लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है, मगर हो सकता है आप कमज़ोर है लेकिन आपके पास बुद्धि है. तो आप ऐसा कहानी जानते हैं जिसमें बुद्धि ज़्यादा काम किया, किससे, मजबूती से. ठीक है, अगर ऐसा स्टोरी है तो बताइए. तीसरा, एक स्टोरी मैं सुनाया था, कौन सा, हम लोग पढ़े थे हिंदी में, याद है, चित्रकारी वाला जो था ना, चित्रकार था और शेर था. शेर के सामने चला गया, वो उसका फिर चित्र बनाने लगता है और फिर उसको बोलता है पीछे घूम जाओ, तो पीठ का चित्र बनाएंगे, जैसे ही घूमता है वहाँ से भाग जाता है. तो जो चित्रकार था वो मजबूत तो नहीं था, शेर से तो ज़्यादा मजबूत नहीं है, शेर तो सूखा जाएगा, राइट, लेकिन वो अपना बुद्धि से जो है काम कर लिया. विच पैरोट फ्रॉम द चैप्टर वाज एक्चुअली वाइज अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर. कौन सा तोता जो है ज़्यादा बुद्धिमान था, जो पिंजरा के अंदर जो था वो, या जो जंगल में जो था वो, बताइए. तो मेरे हिसाब से जो जंगल में था वो पिंजरा में आया ही नहीं, राइट, ओके. और उसने जो है उसको सिखाया कि कैसे करना है, और ये तोता फिर समझ गया कि अच्छा वैसे करना है. तो कौन ज़्यादा बुद्धिमान था, तो ऑफ कोर्स आई वुड से दोनों बुद्धिमान है. चलिए, सो नाउ वी हैव अ सेक्शन लेट अस लर्न. हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं. क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक मतलब होता है खाली जगह. विथ सुटेबल फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स टू मेक ए मीनिंगफुल पैराग्राफ. हमको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है. अच्छा, न्यू वर्ड्स के बारे में तो हमने छोड़ दिया. मर्चेंट मीन्स व्यापारी हम लोग किए थे. पर्च मीन्स मतलब बशेरा, राइट. टेंडर मतलब होता है नाजुक, है ना. टेंडर एज मतलब नाजुक, कमजोर. विंडोशील वही खिड़की के पास वाली जो जगह विंडोशील बोलते हैं उसको. डिस्ट्रेड मतलब होता है दुखी मन से, है ना, व्यथित मन से. और साइड मीन्स आहभरी, दुख मन से, है ना. साइड मीन्स आहभरी, जैसे मान लो तुमको कुछ करना था और नहीं हो पा रहा है, राइट. वही तोता का यही हुआ था ना, तोता बाहर जाना चाह रहा था लेकिन नहीं जाने दिया व्यापारी, तो उसको आहत हो रहा था ना, आहभरी. तो साइड मीन्स आहभरी. साइड नहीं, साइड. ठीक है, साइड. अब देखते हैं इसको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है. तो देखो, स्टैंड अपराइट मतलब ऊपर की तरफ, स्टैंड खड़ा रहो, अपराइट. ऑल ओवर मतलब सब मिला करके. लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना. स्टेप्ड आउट मतलब बाहर की तरफ जाना. स्टेप मतलब होता है कदम आगे की तरफ बढ़ना, स्टेप्ड आउट. वेंट अवे मतलब दूर जाना. गो, वेंट, गॉन. जाना किधर, अवे मीन्स दूर. अवे मीन्स क्या होता है बच्चा, दूर. केम अक्रॉस मतलब कि किसी चीज़ के अक्रॉस आना, मतलब उसके पार करके आना. ठीक है. अबाउट इट
अबाउट टू मतलब होता है कि जैसे मान लो आप कहीं पहुंचने वाले हो, राइट, कोई जगह पे, तो हम बोलते हैं कि अबाउट टू मतलब मैं पहुंचने वाला हूँ, राइट। या मान लीजिए आपको 400 रुपया चाहिए और 300 रुपये हो गया, तो बोलोगे ना कि अबाउट टू 400 के पास में है, राइट। अबाउट मतलब होता है कि किसी चीज़ के आसपास, राइट, उसके नज़दीक पहुंच जाना। तो अब देखो ये पैराग्राफ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसमें जो सूट करेगा उसको भरेंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। वन विंटर मॉर्निंग, विंटर सीजन होती है ना, तो एक बार विंटर मॉर्निंग जो है शरद ऋतु का जो सुबह थी, ठंडी के समय की जो सुबह थी, मॉर्निंग थी। एज आई जैसा कि आई मतलब मैं, ऑफ माई होम जैसे ही मैं घर से बाहर, क्या होगा बताइए, घर से बाहर गया, राइट। तो घर से बाहर गया, इसमें कौन सा होगा बताओ, स्टेप्ड आउट, स्टेप मतलब कदम, बाहर, आउट मतलब बाहर, तो ये हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेप्ड आउट। क्या हो जाएगा बोलो, स्टेप्ड आउट ऑफ माई होम, अपने घर से बाहर। आई सा डैट मैंने देखा कि द स्नो मीन्स होता है बर्फ, क्या होती है, स्नो मीन्स बर्फ वॉज द प्लेस। अब वहां पे बर्फ क्या था, बर्फ वहां पे था, राइट। तो कहाँ पे थे, वो जगह होगा कहीं पे, ठीक है। तो वो देखा कि वहां पे बहुत सारे ये है, तो कौन सा होगा बताओ, स्टेप आउट हो चुका, वेंट अवे नहीं होगा, केम अक्रॉस, स्नो वाज केम अक्रॉस द प्लेस हो सकता है, ऑल ओवर द प्लेस, बट ये होगा ऑल ओवर मतलब हर जगह, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ओवर द प्लेस, हर जगह, सभी जगह पे क्या था, बर्फ था। देखते हैं, वाइल वॉकिंग अप हिल मतलब है ऊपर की तरफ, ठीक है। वाइल वॉकिंग जब मैं टहल रहा था, ऊपर की तरफ चल रहा था, टॉर्ड्स माई शॉप अपनी दुकान की तरफ, आई ए स्मॉल पप्पी हमने, है ना, अबाउट टू नहीं, लुक आफ्टर, आई टॉर्ड्स माई शॉप, आई लुक आफ्टर, नो, स्टैंड अप राइट, ए स्मॉल पप्पी, नो, वेंट अवे, नो, केम अक्रॉस होगा, है ना, कि एक पप्पी को मैं देखा, ठीक है, केम अक्रॉस। देखो केम क्या होता है, V2 है कम का, COME, कम मिस हो क्या होता है, आना, तो कम का V2 क्या हो गया, केम, तो आई के बाद केम V2 सही भी लग रहा है, आई केम अक्रॉस, मुझे यह दिखा कि अक्रॉस ए स्मॉल पप्पी, एक छोटा सा पप्पी है, उस पर ध्यान गया, ठीक है, देखा। इट्स लेग, उसका जो पैर था, लेग वाज इंजर्ड, उसका पैर का घायल था, इंजर्ड मीन्स घायल, एंड और इट वाज क्या था, और क्या था, इट वाज कोलैप्स मतलब होता है कि जैसे मान लो बिल्डिंग गिर गया है ना, तो कोलैप्स हो गया, टकरा गया तो वो गिर गया, राइट। तो इट वाज स्टैंड अप राइट कोलैप्स, ऑल ओवर हो गया, स्टेप डॉट हो गया, वेंट अवे, केम अक्रॉस हो गया, अबाउट टू कोलैप्स, हाँ अबाउट टू होगा, अबाउट टू कोलैप्स। ऐसा लग रहा था कि वो एकदम से टकराने वाला है, मतलब वो जैसे उसका इंजर्ड है तो होता है ना कि जैसे हम घायल हो गए, राइट, तो हमको अब लगता है कि हम गिर जाएंगे, तो क्लैप्स हो जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे, तो अबाउट टू क्लैप्स, यहाँ क्या हो जाएगा, अबाउट टू क्लैप्स, वो लुढ़कने वाला था। बीइंग इन पेन, वो दर्द में था, किसमें था, दर्द में, बीइंग इन पेन, इट वाज अनेबल टू, वो दर्द में था, अनेबल मतलब होता है कि वैसा ना कर पाना, अनेबल, ठीक है, अनेबल टू मतलब कि वैसा नहीं कर पाना, अनेबल टू, वो क्या नहीं कर पा रहा था, अनेबल टू, बताइए इसमें से कौन सा आएगा, अनेबल टू वेंट अवे, नो, स्टैंड अपराइट मतलब वो ऊपर खड़ा नहीं हो पा रहा था, ये सही हो सकता है। अगर उसका पैर टूट गया है, पैर में अगर दर्द है, इंजर्ड हो गया है, तो वो उठ नहीं पाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, पेन, इट वाज अनेबल टू स्टैंड अपराइट, यहाँ क्या हो जाएगा, स्टैंड अप राइट, ठीक है। सो इसलिए आई डिसाइडेड, फिर से आ गया V2, मैंने डिसाइड किया, निर्णय किया कि टू टेक मीन्स लेना, ईट उसको, कुत्ता था, पप्पी को ईट होम, घर लेके चले, निर्णय किया, और
एंड एंड और क्या होगा, और उसको फिर क्या किया, लुक आफ्टर मतलब देखभाल किया। क्या किया बच्चों, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब देखभाल। इट विथ गुड केयर, ध्यान से, गुड केयर मतलब ध्यान से। ऑल इट्स पेन, उसका जितना भी दर्द था वो क्या हो गया, वेंट अवे, दूर चला गया, वेंट अवे। भी टू फिर से आ गया, गो वेंट, दूर चला गया, सारा दर्द खत्म हो गया। ठीक है बच्चा, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग राइट। मैं देखो थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर खाना मेरा खत्म करना उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य क्या है बच्चों, मेरा उद्देश्य है कि आप लोग को सही से जो है स्टोरी समझाऊँ, स्टोरी का जो लेसन है वो समझाऊँ, और इसमें जो स्ट्रक्चर है, ग्रामर है राइट, इसमें जो वर्ड मीनिंग है वो सब कुछ अच्छे से प्यार से एकदम समझाऊँ, और ताकि आप लोग भी प्यार से चीज़ों को सीखें। ठीक है, चलिए बी सेक्शन देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस, सेंटेंस मतलब होता है वाक्य हिंदी में, ठीक है, और वाक्य एस जोड़ दिए तो क्या हो गया बहुत सारा सेंटेंस है तो वाक्य। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला आपके लिए किया गया है, बाकी आप करके देखिए। तो करते हैं। A flight of parrots came to the forest. Flight of parrots. अब यहाँ पे देखो अलग अलग वे है, अभी जैसे पीछे वाला सेक्शन में हम लोग फील कर रहे थे, यहाँ पे फील करना है। पैक, बॉकेट, आर्मी, फ्लॉक, बंच, फ्लाइट, स्वार्म। ठीक है, स्वार्म। तो अ फ्लाइट ऑफ पैरोट्स मतलब जो तोता का जो झुंड होता है ना उसको फ्लाइट बोलते हैं। ठीक, तोते के झुंड को क्या बोलेंगे, फ्लाइट बोलेंगे। ठीक, अ फ्लाइट ऑफ पैरोट्स। आई सा, मैंने देखा, आ ऑफ सीप इन द फील्ड्स। ठीक है, तो जो सीप है, सीप समझते हैं ना, भेड़, तो भेड़ के झुंड को क्या बोलते हैं। ठीक है, भेड़ के झुंड को क्या बोलते हैं, तो भेड़ के झुंड को आई होप, ठीक है, इसमें मैं आता हूँ थोड़ा सा, मैं भूल रहा हूँ कौन सा हैगा राइट। तो वी विल केस, यहाँ पे देखते हैं, पहले 7 नंबर देखते हैं। आई हेल्प, मैंने मदद किया राइट। आई हेल्प, बिट्टू फिर से, आई हेल्प मैंने मदद किया, माई मदर मैं अपनी माँ को, फाइंड, फाइंड मिस खोजने में, फाइंड करने में, क्या, बंच ऑफ कीस, कीज के साथ बंच आता है। ठीक है, बंच ऑफ कीस, समथिंग लाइक दैट, बंच ऑफ कीस, चाबी के गुच्छे को बंच बोलते हैं, है ना। इसमें दो चाबी है, ये बंच हो गया राइट, अब बंच ऑफ कीज। ठीक है, अब देखिए, और फ्लाइट भी हो गया, बंच भी हो गया। हैविंग लॉर्डली फ्लावर्स ऑफ द चीफ गेस्ट, वी गेव अ hovered around the flowers, swarm, bouquet, and swarm of ants is moving towards the ant hill. ओके, तो इसमें हमें देखना है सीप का, सीप के जो झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं राइट। सीप के झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लेट्स आई नीड टू सर्च ऑन द गूगल। सो sheep together called flock, flock कहते हैं। ठीक है बच्चों, flock, FLOCK, flock। ठीक है, और sheep जो है उसको ये बोलते हैं। and then we gave of flowers to the chief guest। अब फूलों के गुच्छे को क्या बोलते हैं बताइए। फ्लावर्स, फ्लावर्स, आई एम ऑल्सो लर्निंग विथ यू, तो उसको बोलते हैं बॉकेट। ठीक है, इसको लिख लो बॉकेट। तो यहाँ फ्लावर्स के केस में क्या आ जाएंगे, BOUQUET, बॉकेट। ठीक है, क्या बोलते हैं
बॉकेट, राइट। एंड देन जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी भी तो झुंड में चलती है ना, उसको क्या बोलते हैं? तो बीज को बोलते हैं स्वार्म, ठीक है, ये वाला स्वार्म। तो पे क्या हो गया, SWARM, स्वार्म। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो तोता है उसके झुंड को फ्लाइट बोलते हैं, ग्रुप में चलता है तो उसको फ्लाइट। सीप हो गया, उसको फ्लॉक बोल दिया गया। जो फ्लावर है, फ्लावर के गुच्छा हम गिफ्ट में देते हैं ना, कोई आता है गिफ्ट में नहीं, मतलब वेलकम करने के लिए देते हैं, तो उसके बॉक्यूट बोलते हैं। एंड जो मधुमक्खी का जो झुंड है उसको श्वान बोलते हैं, ठीक। एंड देन वी हैव एंड्स, चींटी, ठीक है। अब हमारे पास बच गया कौन, चींटी। तो चींटी को क्या बोलते हैं, ठीक। तो चींटी का भी देख लेते हैं। एंड्स, सॉरी, एंड्स। तो एंड का क्या हो गया बच्चों, आर्मी, आर्मी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, आर्मी, ARMY, आर्मी, ठीक है। एंड देन WOLVES, बुल्स। वुल्फ मीन्स क्या होता है, लोमड़ी, ठीक है। तो ये हो गया अ पैक, इसको क्या बोलेंगे, पैक। अ पैक ऑफ बुल्स बस हॉलिंग लॉर्डली। जो सियार होता है ना, भेड़िया, तो बुल्फ मीन्स भेड़िया होता है ना, सियार, बुल्फ, बुल्फ, यस बुल्फ। तो बुल्फ का बुल्फ्स हो गया, WOLF, बुल्फ मीन्स भेड़िया होता है ना। तो अगर एक भेड़िया है तो बुल्फ बोलेंगे, और ढेर सारा है तो क्या हो जाएगा, WOLVES, बुल्फ, उसी को बोलते हैं। तो अब ये देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। जीके भी है और इसके साथ साथ हम इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, तो इसको आप याद कर लेंगे, ठीक। फ्लाइट, पैरोट का फ्लाइट हो गया, सीप का फ्लॉक हो गई, एंड देन भेड़िए का पैक हो गया, फ्लावर का बॉकेट हो गया, और जो है आपका मधुमक्खी का स्वार्म हो गई, एंड देन चींटी का आर्मी हो गई, एंड देन चाबी का बंच हो गया, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको याद कर लिए होंगे और याद कर लेंगे। तीसरा है रीड द फ्लोइंग, नीचे जो है उसको करो। तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ पहला वीडियो में। सब्जेक्ट, हैज़ और हैव, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब के एक्चुअल में क्या होगा, V3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको करना है, तो ये कर देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो बंद करूँगा। यहाँ पे आई विजिट, तो इसका V3 क्या होगा, और आई के साथ क्या होगा बच्चों, आई हैव, और विजिट के EDs में जोड़ देंगे, विजिटेड। दिल्ली मेनी टाइम्स, मैं दिल्ली बहुत बार गया हूँ। इट इज़ ए सिटी, यह एक शहर है, विथ मैनी हिस्टोरिकल साइट्स, वहाँ पे बहुत ऐतिहासिक दृश्य है वहाँ पे। माई फ्रेंड ऑन्स हंगला इज़ एन आर्टिस्ट, मेरा एक दोस्त आर्टिस्ट है। सी ड्रॉ, अब सी के साथ क्या लगेगा, हैज़, तो सी हैज़, और ड्रॉ का V3, ड्रा, ड्रू, ड्रॉन, तो DRAWN हो गया। मिस्टर जून, मिस्टर जून क्या नाम है, तो नाम के साथ क्या लगता है, हैज, तो मिस्टर जून हैज बाई, बाई का क्या होगा, V3 BOUGST, बाउट, आप किताब में देख लीजिएगा। आई के साथ क्या होगा, हैव, और कंप्लीट का कंप्लीटेड, V3 क्या हो जाएगा, ED जोड़ दो, तो हो गया कंप्लीटेड। माई ब्रदर, माई ब्रदर क्या होगा, हैज। रिवाइज्ड, यहाँ पे ED लगा देंगे, तो रिवाइज्ड हो जाएगा V3। दे हैव, दे के साथ हैव, राइट का राइट, रोट, रिटेन, V3 क्या होगा, रिटेन, RWRITTEN, रिटेन, ठीक। दे हैड रिटेन लेटर्स, दे हैव रिटेन लेटर्स टू देयर फ्रेंड्स, हो गया। तो इस तरह से इस चैप्टर को हमने, सॉरी अभी और है, आई डोंट नो हाउ मेनी, तो और मैं जल्दी जल्दी कर दूँ क्या, नहीं, एक वीडियो और बना देते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा।